Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is ED. We will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. The learning objectives for today's discussion are: number one, define each term, aims, goals, and objectives in curriculum. Number two, important questions for educator to consider while developing aim, goals, and objectives in the curriculum documents. Number three, review aims, goals, and objectives in our own national curriculum framework of Pakistan. So at the end, there is a reference document from where I have built up all of this presentation. If you get a chance, go through it. Otherwise, I will going to put up the link of this article, so you will go easily going to take it out. The first one is aims. First of all, we will going to define what aims are. Aims are broadly stated educational purposes in a curriculum document. They are designed to establish and maintain the society's ideal. What does we mean by the ideals? The society ideals are actually the best example that our schooling and education system wanted our student to be like that. For example, there are two major aims that I stated over there. The first one is prepare students for democratic life. So it is a very broad and very vast and very ideal aim that once we are going to educate the students in schools and colleges, at the end when they will going to be a part of the society, they will be practicing their democratic values over there. So what we are doing, we are preparing them for the democratic life. It is a broad and ideal aim. So let's come up to the second one. Aims reflect interest in the welfare of both individual students and the society. So you can easily look it up there on the example of these two aims: prepare a student for the democratic life. It is not only important for the student itself, but it is also important for the society in general. And the second one is to prepare citizens who are literate. So if we are preparing citizens who are literate, it is not only beneficial for the citizen, they will going to get good jobs, they have good skills and knowledge base that will going to help them in solving their personal and professional problems, and definitely they will going to provide a good human resource to the society. So aims are broad educational purposes. Those are serving not only to the individual but largely to the society, and they're always ideal, the best, the perfect. The most important thing about the aim is that aim direct the construction of goals and objectives. So always in the discussion of aims, goals, and objectives, aims always come first on the top. They are broader. In some of the discussion and some of the educationists and theorists think about it, that aims are generally vague, and generally it is very difficult, almost impossible to directly measure them. It is absolutely fine. You can see that how you would going to measure that the student is prepared for the democratic life or not. Maybe you will going to measure by looking at the grades, a student personal attitude and behavior, but this is not enough to measure it and make a statement that the student is ready for the democratic life. So aims are very broad and they are actually impossible to measure directly. How do we measure them? We measure them with the help of goals and objectives. And actually aims are the one in a curriculum document that provide a foundation for developing goals and objectives. Before heading to goals and objectives, there are some few important questions for educators to consider. So we all know that aims are in the curriculum document and they are broad standards. So first question that came into the mind of educator that educator need to consider is, where in the standard curriculum should we place the responsibility for preparing the student for democratic life? That was the aim, where we were going to place it. But do you think about it?
डू यू थिंक कि सोशल स्टडीज़ का जो कोर्स है वो स्टूडेंट को डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए अच्छा रहेगा, या हमें हिस्ट्री के कोर्स के थ्रू अपने इस एम को अचीव करना पड़ेगा? तो सबसे पहला जो सवाल आता है एजुकेटर्स के सामने वो ये आता है कि ये जो ब्रॉड एम है ये हम किस कोर्स और किस सब्जेक्ट के थ्रू हासिल करेंगे, और वहाँ से हासिल होना मुमकिन हो सकता है। सोशल स्टडीज़ वाले डेफिनेटली अपने रीजंस देंगे और हिस्ट्री वाले अपने रीजंस देंगे। तो सेकंड चीज़ आती है वो ये आती है कि डू आवर स्टेटमेंट ऑफ एम एग्जाम्पलीफाई अ रियल कमिटमेंट टू वेल कंसिडर्ड आइडियल्स। क्या ये एम्स जो हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, करिकुलम डेवलपर्स और एजुकेटर्स उसके बारे में कितना सीरियस हैं और कितना सिंसियर हैं, और ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है क्या वाकई ये आइडियल स्टेटमेंट जो है ये एक रियल स्टेटमेंट है जिसे टीचर्स ने अचीव करना है, या ये एक हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट हो सकती है। सो इसके लिए हमारे पास करिकुलम डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम है जो हर करिकुलम डॉक्यूमेंट का हमारे हिस्सा है, एंड दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. So critical thinking is the aim of our science education. It is the aim of our language, either English or Urdu. It is the aim for our social study, then for history, for Islamiyat, for mathematics. So हम हर सब्जेक्ट में चाहते हैं कि हमारा बिगर एम ये है कि बच्चे जब 12 साल स्कूल में पढ़ लें तो दे बिकम अ क्रिटिकल थिंकर. सो हाउ डू दे बिकम अ क्रिटिकल थिंकर अगर हमें उनको कंट्रोवर्शियल इश्यूज नहीं पढ़ाने? एजुकेटर्स को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्या हम उन्हें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, या अगर हम कंट्रोवर्शियल इश्यूज उनको नहीं पढ़ाते तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप भी हो सकती है? जब हमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि कई दफ़ा एम हमारे करिकुलम डॉक्यूमेंट में एक हिपोक्रेसी की तरह मौजूद होता है. एक्चुअली हम उसे अचीव नहीं करना चाह रहे होते. So, educators need to give it a look on this issue. The means chosen to pursue the aim, how the aim will be translated into goals. हमारा जो आखिरी पॉइंट है जो एजुकेटर्स को कंसिडर करना पड़ता है जब करिकुलम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और उसमें एम्स डेवलप कर रहे होते हैं, तो ये देखना होता है कि कौन सा मीन है जिससे ये एम अचीव होंगे, कैसे इन एम्स को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं गोल्स के अंदर, और फिर उन गोल्स को फर्दर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर. सो एम बना लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. जब हम एम बना लेते हैं, एक ब्रॉडर एम बना लेते हैं कि हम अपने बच्चों को एक डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्कूल में, तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि ये हम किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे बनाएंगे. हमें ये भी बताना पड़ता है कि क्या एक ये रियल सीरियस एम है जिसे हमें बाय ऑल मीन अचीव करना है, या ये एम सिर्फ वर्ड्स के लिए है, लिखने के लिए है, और दुनिया के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है तो हमने लिख लिया है, पर शायद हम इसे अचीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. और हमें इस पर ये भी देखना पड़ता है करिकुलम डेवलपर्स को और एजुकेटर्स को कि ये एम कैसे गोल्स में ट्रांसलेट होगा और ये कैसे अचीव होगा, वो क्या मीन्स हैं जिससे ये अचीव हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज गोल्स. Goals are usually established for grade levels and or particular subject matter. क्या हैं जी हमारे सब्जेक्ट मैटर्स स्कूल में? मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, इस्लामियात, हिस्ट्री एंड सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गोल? गोल जो है वो एक्चुअली हमें सब्जेक्ट मैटर के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और वो ग्रेड वाइज बनाए जाते हैं और सब्जेक्ट के अंदर तमाम गोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का क्या मकसद है? हम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहते हैं या उर्दू क्यों पढ़ाना चाहते हैं? मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने का क्या गोल है? कौन कौन सी मैथमेटिक्स स्किल डेवलप होंगी ग्रेड 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में टिल 12. सो ये गोल्स हैं जो कि सब्जेक्ट में मौजूद होते हैं और सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होते हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेटर के लिए, वो गोल्स के लिए भी कंसिडर करते हैं. Give it a look. Educating student for democratic citizenship. ये हमारा एम है. अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथ का टीचर इसको कैसे अचीव करेगा? How can math teacher help to produce democratic citizen? So the important thing over here is that कि मैथ का टीचर ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्स में और सब्जेक्ट मैटर में और अपनी टेक्स्ट बुक में मैथ की वो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की वैल्यूज़ बच्चों में डेवलप करें.
उसके लिए वो अपनी क्लासरूम प्रोसीजर में डेवलप कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि मैथ का टीचर ये चीज़ को अप्रिशिएट करे कि ह्यूमन डाइवर्सिटी है टैलेंट्स के अंदर, और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट जो मैथ में बहुत अच्छे नहीं है वो टैलेंटेड नहीं है। मे बी दे हैव अदर काइंड ऑफ टैलेंट, और उन टैलेंट को भी अप्रिशिएट करना हमारी लार्जर वर्क फोर्स को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बहुत से ऐसे क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग होते हैं जो कि मैथ में कंफर्टेबल नहीं होते, बट दे आर वेरी गुड इन देयर अदर फील्ड, लाइक पेंटिंग, लाइक म्यूजिक, लाइक पोइट्री, लाइक राइटिंग। सो उन लोगों को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, कैसे उनकी वैल्यू को एक्नॉलेज किया जाए। तो अगर मैथ का टीचर अपनी क्लास में उन्हें कंसिडर करेगा और एक्नॉलेज करेगा तो डेफिनेटली द मैथ टीचर इज इन फैक्ट इनडायरेक्टली लेटिंग द अदर स्टूडेंट नो and learn that how to deal in a society with diversity and society that have diverse talent and have a respect for them, and it is a democratic value that is required in a democratic citizenship. So another one is, what does it mean to be mathematically literate? So हमारा दूसरा जो एम था वो ये था कि हमें लिटरेट बनाना है फॉर द पर्सन, कि एक लिटरेट सिटीजन हो जो कि सोसाइटी के काम आ सके। सो मैथमेटिकली लिटरेट का क्या मतलब है? जब हमारे पास गोल्स आते हैं तो हम उसमें इसको कैसे देखेंगे? सो व्हाट गोल्स शुड mathematics educator establish to contribute to aims such as following: to educate a student who can communicate effectively. अब ये एक ब्रॉडर एम है जो पूरे करिकुलम डॉक्यूमेंट का होता है कि स्टूडेंट शुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली आफ्टर 12 ईयर और आफ्टर 8 ईयर ऑफ एजुकेशन। सो मैथ का टीचर इसको कैसे अचीव करेगा? हु वर्क वेल एज अ मेंबर ऑफ अ टीम? कैसे मैथ का टीचर स्टूडेंट को प्रिपेयर करेगा एक बड़े एम के लिए कि वो टीम के अंदर काम कर सके, बिकम अ गुड टीम मेंबर। हु आर फ्लेक्सिबल इन द फेस ऑफ चेंज? कैसे वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करे कि जब भी चेंजेस आए करिकुलम में आए, हमें स्किल्स और टेक्नोलॉजी को सीखने में आए, या जो भी हमारे पास साइंटिफिक इनोवेटिव चेंजेस आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही है, उन चेंजेस को हमने कैसे लेना है? हाउ वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन लर्निंग। हु आर स्किल्ड इन एनालिसिस एंड कंसेप्चुलाइजेशन? सो अगर ये हमारे एम्स हैं करिकुलम के और एजुकेशन के, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथ का टीचर इन एम्स को कैसे अचीव करेगा विद द हेल्प ऑफ देयर गोल्स। क्या वो गोल्स करिकुलम में लिखे हुए हैं या वो गोल्स उसे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनकलकेट करने पड़ेंगे इन अ फॉर्म where he or she need to develop lots of activities where students will going to be work together in a team, get opportunity to share their responsibilities, set their goals, negotiate, responsibility के साथ अपने conflicts को resolve करना सीखेंगे, और कैसे वो एक दूसरे के साथ accommodate करना सीखेंगे, और कैसे वो जब अपना काम कर लेंगे in the form of a team work, तो वो कैसे अपने एनालिसिस और कंसेप्चुलाइजेशन को प्रेजेंट करेंगे, दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करेंगे कि वो किस नतीजे में पहुँचे और कहाँ तक पहुँचे। सो सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक कि ये गोल्स कैसे अचीव हो रहे हैं, वो क्या मीन्स हैं जो एम्स अचीव हो रहे हैं, वो टीचर अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी में और क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में भी ला सकता है। The other one are objectives. Objectives are measurable student outcome. So that is the simplest definition. On the top always come the broader, more general term, and that is aims. Under the aims actually guide the goals. And in the bottom, there are always objectives. Objectives क्या है? Objective बहुत clear, precise learning outcomes होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, टीचर रोज़ाना के लेसन प्लान में बनाते हैं। सो एम कहाँ मौजूद होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम एम करिकुलम डॉक्यूमेंट में मौजूद होते हैं या हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में मौजूद होते हैं। गोल्स कहाँ मौजूद होते हैं? गोल्स हमारे करिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं, और ऑब्जेक्टिव हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी लिखे होते हैं, और टीचर रोज़ाना की बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं। Teacher recommended to have a learning objective for every lesson, drawn from a textbook or list of standards. Objectively frequently take the following form. कैसे टीचर्स ऑब्जेक्टिव बनाते हैं? हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। Student will add fractions with different
denominators up to 12 with at least 80% accuracy. So टीचर का गोल ये है आज के लेसन में, जस्ट फॉर इंस्टेंस, कि जब वो पूरा पढ़ा लेगा लेसन स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, दे विल लर्न that how to add fraction with different denominators up to 12 with at least 80% accuracy के साथ. ओके, इसका मतलब है टीचर ने आज के लेसन में इस ऑब्जेक्टिव को बायोल अचीव करना है. इसका मतलब है टीचर के अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव आना चाहिए और उसको उन्होंने अचीव कर लेना होगा. ओके, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है फॉर एजुकेटर दैट नीड टू कंसिडर. Teachers are rarely asked to relate their objective to goals and aims. One aim is mathematical literacy. Teachers जब अपनी क्लास में रोज़ाना लेसन प्लान बनाते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो उनसे रेयरली पूछा जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव किस एम में फिट इन होता है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम एम्स नहीं लिखे होते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं या गोल्स लिखे होते हैं. तो टीचर जनरली डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ क्या ये किसी गोल में या किसी एम में सेट इन होता भी है या नहीं होता. लेट्स टेक एग्जांपल मैथमेटिक्स का ही, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की क्लास के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी टीचर ने अपनी एक दिन की क्लास के लिए बनाया है, किस चीज़ का, मैथमेटिक्स का. सो द वन एम इज़ मैथमेटिकल लिटरेसी, कि मैथ पढ़ने के बाद स्टूडेंट में मैथमेटिकल लिटरेसी पैदा हो जाए. ओके, द टीचर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी why am I teaching this, and then what method will be best help us to meet not only the immediate objective but also the aim and goal it is meant to serve. So teacher के जहन में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि वो कौन सा गोल है और वो कौन सा एम है जिसको मैं सर्व करने जा रही हूँ और उसके हिसाब से मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने हैं. सो व्हाट टीचर कैन डू, टीचर क्या कर सकती है, टास्क एनालिसिस कर सकती है इस गोल को देख के, मैथमेटिकल लिटरेसी को देख के, कि आज उसने फ्रैक्शन पढ़ानी है, फ्रैक्शन में मैथमेटिकल लिटरेसी कैसे डेवलप की जा सकती है, किस किस्म की टास्क दी जा सकती है, उन टास्क को करने के लिए स्टूडेंट कौन सी स्किल्स करेंगे और जिसको मैं कह सकूँगी कि ये मैथमेटिक्स. हियर वी हैव टू एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ अ कॉमन क्लासरूम, जैसे कि हम सब ने ऐसी क्लासरूम में मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन को इसी तरह पढ़ा होगा. और सेकंड जो मेथड है टीचर का, दैट्स अ डिफरेंट मेथड. सो लेट्स लुक एट देम, read it out and compare. Number 1, suppose students are asked to add 5 by 6 and 3 by 8. So that is a common method. बच्चों को हम ये सवाल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भैया 5 by 6 and 3 by 8 को ऐड करो, और फिर हम उन्हें बताते हैं कि इसको ऐड करने का बेहतरीन तरीका ये है टू फाइंड आउट अ कॉमन डिनोमिनेटर. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिडर द लार्ज डिनोमिनेटर, इन दिस केस 8. Will 6 go into 8? If not, try to multiply by 8. If that doesn't work, try 3 multiply by 8. Since 3 multiply by 8 is equal to 24 and 6 multiply by 4 is equal to 24, we can conclude that 24 is the lowest common denominator. This method is very quick, it is easy, and it works for most of the fractions found in elementary textbooks. But it does not contribute much to the understanding of fraction or mathematical literacy. Now look at the second method. That's a better approach. 6 is equal to 2 multiplied by 3 and 8 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2. In this way, spend some time talking about the fundamental theorem of arithmetic. So हमें करना क्या पड़ेगा कि जब हम इस मेथड से फ्रैक्शन सिखाएंगे तो हमें स्टूडेंट से डिस्कशन करनी पड़ेगी, किस चीज़ के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक के बारे में. That is, every integer is either prime or can be expressed uniquely as a product of prime. Now we notice that the lowest denominator must include every prime that occur in either denominator. And the LCD क्या निकलेगा, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and that is equal to 24. This method takes time. क्यों? क्योंकि इसमें हमें बच्चों से बहुत सी डिस्कशन करनी पड़ेगी, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, कुछ अंडरलाइन रूल्स के ऊपर बच्चों से बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगा कि then we will going to require more discussion. It takes into account the aim of mathematical literacy. Before heading towards the second objective of this discussion, let's recap what we have done so far.
What we have done so far, we need to see that if we give a hierarchy to aim, goals, and objective, what comes at the top? Always aims will going to become at the top. Why? Because these are ideal, these are broad, and sometimes these are vague and very difficult to measure. That's the reason to measure this aim, we always develop goals and they comes under the aim. So once these goals are actually come to the teachers and to the classroom, these goals further define itself in objectives or student learning outcomes. So always objectives and student learning outcomes are at the bottom of the hierarchy. To fulfill our second objective of this discussion, we will going to see the National Curriculum Framework Pakistan that was actually developed by the Ministry of Federal Education and Professional Training. In this National Curriculum Framework, what we will going to see that how Pakistan National Education Policy and curriculum documents are defining their educational aims, goals, and objectives for everybody. For everybody means for the students who are coming in the preschool and the student of the PhD. So now beginning from over here, what I learned by going through the curriculum document, that our curriculum document is actually talking about the goals. Our national education policy is the one that is stating the aims for education and aims for curriculum development. पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आखिरी पॉलिसी आई थी वो 2009 में आई थी, और उस 2009 की पॉलिसी में हमें तमाम जो लेवल की एजुकेशन है उसके एम्स मिल जाते हैं। तमाम लेवल की एजुकेशन का मतलब ये है कि चाहे वो प्री स्कूल हो, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज हो, चाहे वो प्राइमरी ईयर एजुकेशन हो, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या पीएचडी की ट्रेनिंग हो या प्रोग्राम हो, उन तमाम एजुकेशन के लिए जो भी ब्रॉडर एम्स हैं वो हमारी पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें मिलते हैं। फर्दर ये एम कहाँ जाते हैं, ये एम करिकुलम डॉक्यूमेंट इनको गोल्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। यहाँ पे पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 से दिए गए चंद एम्स जो हैं आपके सामने हैं, और हम इन तमाम एम्स को नहीं पढ़ेंगे, इनमें से हम सिर्फ लास्ट एम को पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एम ब्रॉड है। लेट्स सी द लास्ट एम ओवर हियर, दैट इज टू एनेबल एन इंडिविजुअल टू अर्न his or her livelihood honestly through skills that contribute to the national economy and enables him or her to make informed choices in life. So क्या एम है बच्चों को तालीम देने का ग्रेड 1 और प्री स्कूल से लेकर 12 तक, और फिर कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की। सो एक एम एजुकेशन का ये है तमाम वो लोगों के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं कि वो ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए लाइवलीहुड कमा सकें, पैसे कमा सकें और उन्हें जॉब मिल सके, उनमें ऐसी स्किल्स और ऐसा नॉलेज पैदा हो कि वो जॉब मार्केट के लिए एक फ़ायदेमंद फ़र्द साबित हों और उनको आसानी से नौकरी मिल सके। और उनको नौकरी मिलने से क्या होगा, उनकी स्किल से क्या होगा, उनके ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, इस मुल्क की इकॉनमी तरक्की करेगी। सो इट इज़ अ ब्रॉड एंड वेरी आइडियल एम कि तालीम दिलाने का मकसद एक ही है कि इंसान को नौकरी मिल सके और वो मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटा सके। सो हम आगे मज़ीद एक दो एम्स देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है उन एम्स को गोल्स में ट्रांसलेट कर रहा है। ये तीनों एम्स जो यहाँ मौजूद हैं, करिकुलम डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा गोल नहीं था जो इसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा हो। नाउ हियर वी हैव 1 2 3 4 एम्स, और इन तमाम एम्स के लिए हमारे पास करिकुलम डॉक्यूमेंट में जो है गोल्स मौजूद हैं। हम ये तमाम एम्स नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, हम सबसे पहले पहला एम देखते हैं। पहला एम पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में है, वो ये है कि टू प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आइडियल्स दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक आइडियोलॉजी within the Islamic ethos enshrined in 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो ये एम क्या है कि जब बच्चा पहली जमात में आएगा और वो 12वीं जमात पास कर लेगा और कॉलेज एजुकेशन कर लेगा, अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनका क्या किरदार था पाकिस्तान बनाने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडियल्स, और उसके अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप हो सकें, स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक आइडियोलॉजी। हमारी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम के ऊपर बेस करती है, तो वो हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी
और हमारे इस्लाम की जो वैल्यू सिस्टम है वो उसको समझता भी हो और उसको प्रैक्टिस करने के काबिल भी हो। और वो इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं? वो वैल्यूज़ जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थी। अब कैसे करिकुलम इस एम को डिफाइन कर रहा है इन अ गोल? लेट्स गो एंड चेक इट आउट। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? To strengthen national integration and foster patriotism through transfer of information and knowledge about Pakistan movement. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जितने भी करिकुलम मौजूद हैं उसके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन और मुहिब वतनी डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ किताबों में इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ टॉपिक्स अब हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आपको उर्दू में मिलेंगे, आपको इंग्लिश के अंदर मिलेंगे, आपको नज़मों में मिलेंगे, आपको साइंस और मैथमेटिक्स में हो सकता है चैप्टर्स में कहीं ये भी पढ़ने को मिले कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े साइंसदान कौन हैं और मैथमेटिशियंस कौन कौन है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और इस्लाम के कौन से बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस रह चुके हैं। सो ये तमाम टॉपिक्स क्या करेंगे? ये तमाम टॉपिक्स करिकुलम के मुख्तलिफ सब्जेक्ट में इंटीग्रेट किए जाएंगे और इनका मकसद क्या होगा? स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन एंड फोस्टर पेट्रोटिज्म। इसका मतलब ये होगा कि चाहे आप उर्दू पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे इस्लामियात पढ़ें, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें या आप साइंस और मैथ के सब्जेक्ट पढ़ें, किसी न किसी तरीके से हम आपको पाकिस्तान की मूवमेंट के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हमारे आइडियल्स क्या थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। Then what it is and character building in accordance with Islamic faith and human values. So हमारे करिकुलम में मुख्तलिफ करिकुलम में चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो या किसी भी स्कूल सब्जेक्ट का हो, उसके अंदर हमारे करैक्टर बिल्डिंग के लिए भी कहानियाँ और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज रखी जाएंगी और वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, किस फ्रेमवर्क की होंगी? एक इस्लामिक फेथ और दूसरा ह्यूमन वैल्यूज। सो दैट्स हाउ हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट एम को लेगा और एम को लेने के बाद मुख्तलिफ करिकुलम डॉक्यूमेंट्स में इन एम को ट्रांसलेट करेगा इनटू टॉपिक्स, इनटू कंटेंट एरियाज। So here are the last three aims that we have taken it from the Pakistan National Education Policy 2009. इसके अंदर हम एक एम पढ़ते हैं। Let's take the first one, to provide and ensure equal educational opportunities to all citizens of Pakistan and to provide minorities with adequate facilities for their cultural and religious development, enabling them to participate effectively in the overall national effort. So what this aim is talking about? ये एम क्लियरली बता रहा है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना रियासत का काम है कि वो स्कूल में आए और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। स्पेशली ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि माइनॉरिटी से आ रहे हैं, जो किसी और रिलीजन या कल्चर एथोस से बिलोंग करते हैं और इसका की मकसद ये है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट इन पाकिस्तान टू कम टू द स्कूल एंड गेट द एजुकेशन। सो अब करिकुलम डॉक्यूमेंट इसको कैसे डिफाइन कर रहा है? इन अ फॉर्म ऑफ अ गोल to equip children, youth, adults with abilities of critical thinking, problem solving skill, foster among them an aptitude for scientific inquiry, leading to creation of a new learning and knowledge. Now we are coming over here with the topic of educational objectives of curriculum. So हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं जो करिकुलम डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, अब जब गोल से ये ऑब्जेक्टिव में ट्रांसलेट होते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेके टीचर्स अपना डेली लेसन प्लान बनाते हैं और इन्हीं डेली लेसन प्लान पे टीचर अपनी असेसमेंट बनाते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका सबसे पहला पर्पस ये होता है कि इट हेल्प द सोसाइटी टू ट्रांसलेट इट वैल्यूज एंड नीड्स इनटू एन एजुकेशनल प्रोग्राम। The second purpose of educational objective is to serve a means for attaining goals and a guide for assessing achievement of those goals. The third one is that the objectives of a subject curriculum indicate as to what a student should have accomplished after successful completion of curriculum of a subject. And educational learning objectives always should preferably be stated in behavioral terms. So what do we mean by the behavioral term? कि वो एक behavior की term में हमें नज़र आनी चाहिए, चाहे वो आपका thinking behavior हो, चाहे वो आपका emotional behavior हो, चाहे वो आपका skill से related behavior हो। So ये क्या चीज़ें हैं, हम आगे इसको मज़ीद
समझने की कोशिश करेंगे। सो हियर आर द की फीचर्स ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव। हर सब्जेक्ट के जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी की फीचर क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। द फर्स्ट की फीचर ऑफ द सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव इज to specify the expected performance and nature of evidence needed as an indicator for satisfactory performance. So हमारे सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला की फीचर ये होता है कि वो स्पेसिफिकली ये बताता है कि स्टूडेंट ने क्या करना है, स्टूडेंट क्या करेगा। स्टूडेंट कैलकुलेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, क्रिएटिव राइटिंग करेगा, क्या करेगा, एंड द नेचर ऑफ एविडेंस। और टीचर को कैसे पता चलेगा कि उसने ये लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है। तो क्या करता है करिकुलम ऑब्जेक्टिव, वो ना सिर्फ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बताता है बल्कि वो इंडिकेटर भी बताता है जिसके ऊपर हम असेसमेंट बनाते हैं और मार्किंग करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी ये किस लेवल तक स्टूडेंट ने अचीव कर ली। Another important key feature of subject curriculum objective is cover various learning domains. So हमारे curriculum में तीन important domains हैं, and that number one is cognitive domain, number two is affective domain, and number three is psychomotor domain. I'm sure जब आपने इन domains का नाम सुना होगा तो आपको Bloom's taxonomy जहन में आ गई होगी. Another key feature of subject curriculum objective is it should be very simple and should be realistic and very specific. Specific means कि हमें पता हो कि किस domain में fall कर रही है. Then it should be clear and precise enough to plan learning experiences for the student and assess extent of achievement of objective. Now there are two very interesting features of subject curriculum objective. What they are. Number one, reflect need of student, teachers as well as the society. So here is a point जहाँ पे हम सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव को कहाँ इम्बेड कर रहे हैं, अपने लार्जर एम्स पे। और एम्स का मकसद क्या था कि लार्जर सोसाइटी को सर्व करना। The second key feature of subject curriculum objective is indicate benefits both to the learner and the society. Last but not the least, subject curriculum objective use action verb. Count, multiply, write, draw, explain, describe and distinguish. So जब हम अपने सब्जेक्ट के करिकुलम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम उसको हमेशा एक्शन वर्ब की फॉर्म पे लिखते हैं. So there is a difference between simple verb and action verb. एक्शन वर्ब वो होता है जिसको आप पढ़ने के बाद भी एक्शन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ काउंट लिखा है तो टीचर क्वेश्चन बना सकता है, count the number of triangles in this figure. So आप क्या करेंगे? You are going to count. अगर यहाँ लिखा हुआ है draw apple, तो आप क्या करेंगे? You know that what exactly and specifically what I'm going to do. That is draw an apple. So कौन से verb होते हैं जो action verb नहीं होते और टीचर्स उन्हें सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल नहीं करते? जनरली वो तीन वर्ब होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते. नंबर वन, अंडरस्टैंड. नंबर टू, नो. नंबर थ्री, लर्न. सो ये तीनों वो वर्ब हैं जो एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, रियलिस्टिक और क्लियर, प्रिसाइज एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो सकते. दैट्स द रीज़न हम इनको इस्तेमाल नहीं करते और सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमेशा एक्शन वर्ब की फॉर्म पे लिखे जाते हैं. The elaboration of curriculum objectives into competencies and SLOs. So we are going to now see कि हमारा जो नेशनल करिकुलम है पाकिस्तान का उसके अंदर गोल्स और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम किस तरीके से लिखे जाते हैं और किस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है. The curriculum document of various subjects prepared in 2006 follow a set of pattern of 4. जब हम सारे कोई भी सब्जेक्ट का करिकुलम डॉक्यूमेंट देख लें पाकिस्तान का जो कि 2006 में बना है तो हमें पता चलेगा कि जितने भी हमारे SLOs हैं और जो हमारे करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 4 किस्म के पैटर्न पे डिफाइन किया गया है. सबसे ऊपर आती है हमारे पास कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी इज अ की लर्निंग एरिया व्हिच मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टैंडर्ड. सो जब हमने इन द प्रीवियस डिस्कशन इंग्लिश का करिकुलम देखा था तो हमें पता चला था कि इंग्लिश के करिकुलम ग्रेड 1 से लेके 12 तक ये चाहता है कि स्टूडेंट के अंदर 5 कॉम्पिटेंसी डेवलप हो. और पहली कॉम्पिटेंसी थी उसकी रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल.
सो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल इटसेल्फ एक बहुत ब्रॉड कॉम्पिटेंसी है। इसको ज़रूरी है कि डिफाइन किया जाए कि ग्रेड 1 में क्या लेवल की रीडिंग करवाई जाए, ग्रेड 2 तक स्टूडेंट किस लेवल की रीडिंग करने, और ग्रेड 3, 4, 5 तक किस लेवल की रीडिंग स्किल्स उनमें डेवलप होनी चाहिए, और उसको फिर कैसे असेस किया जाए। इट इज़ द सेम फॉर थिंकिंग कि आप ग्रेड 1 के स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंग्लिश में किस किस्म की थिंकिंग डेवलप करें। आप ग्रेड 5 के स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक फॉर्म पढ़ने के बाद उसके बाद किस किस्म की थिंकिंग जो है प्रोसेस उसका कैरी ऑन होना चाहिए। सो ये ब्रॉड गोल है कॉम्पिटेंसी कि हम चाहते हैं कि ग्रेड 1 से लेके 12 तक हम स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाएं और एट द ग्रेड 12 स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग, रीडिंग और थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाए। पर एग्जैक्टली वो क्या हैं, उनको हमने कैसे डिफाइन करना है, वो फर्दर हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स में। स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी को फर्दर डिफाइन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉम्पिटेंसी इज and what exactly is the meaning of this competency. So standard define, elaborate, break down a competency into simpler milestones or subset of competencies expected to be acquired by the students. Standards are what students should know and be able to do once they have completed their program. स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास आ जाते हैं बेंचमार्क्स। और बेंचमार्क्स क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड को मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। हर कॉम्पिटेंसी के नीचे एक या दो स्टैंडर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉम्पिटेंसी क्या है, और हर स्टैंडर्ड के नीचे ढेर सारे बेंचमार्क्स होते हैं कि ये बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्या है। सो व्हाट दे डू, दे एलैबोरेट स्टैंडर्ड्स, benchmark progress through developmental levels of a student in terms of age and grade. तो सबसे नीचे हमारे पास क्या रहे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर बिल्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंचमार्क एंड ईच बेंचमार्क हैज डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। SLOs are what students should know and be able to do for each topic in any subject area. So further we will going to specifically look at कि हमारे curriculum document में competencies कैसे दिखती हैं, स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, बेंचमार्क स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मजीद बेंचमार्क को एक्सप्लिसिटली कैसे डिफाइन करते हैं कि टीचर्स उनके ऊपर अपना डेली लेसन प्लान बना सकें, स्टूडेंट को पढ़ा सकें और उसके बाद उसके ऊपर अपनी असेसमेंट डेवलप कर सकें। So here is an example. That is example I have taken from Pakistan National Curriculum for Mathematics, और हमारे पास यहाँ है मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड। ये करिकुलम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और ग्रेड 1 से 12 तक मैथमेटिक्स के करिकुलम में हमारे पास 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट ने ग्रेड 12 तक अचीव करने हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड है नंबर एंड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड नंबर 2 इज अलजेब्रा, स्टैंडर्ड नंबर 3 इज मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, standard number 4 is information handling, and standard number 5 is reasoning and logical thinking. So once a student have done grade 12, they must have developed their knowledge and skill in each of these standard. अब ये standard कब से पढ़ाए जाते हैं, grade 1 में जब student enter होता है तो तब से इस standard के topics बच्चों को पढ़ाए जा रहे होते हैं। So here are the benchmarks, और हमारे पास है standard number 5, और उसके हम देखेंगे कि बेंचमार्क्स कैसे बने होते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड 5 था रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, और स्टैंडर्ड 5 को उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया है लार्जली कि ये है क्या रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जब स्टूडेंट पढ़ लेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग के कंटेंट और टॉपिक्स, तो उनमें क्या कैपेबिलिटी पैदा होंगी, दे यूज पैटर्न्स, नो फैक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स to analyze mathematical situations. Number 2, after going through the topics of reasoning and logical thinking, the student will be able to examine real life situations by identifying mathematically valid arguments and drawing conclusion to enhance their mathematical thinking. So ये हमारा है स्टैंडर्ड 5, और उसको आगे डिफाइन किया गया है कि स्टैंडर्ड 5 क्या है, इसमें स्टूडेंट रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग में करेंगे क्या जब वो ये टॉपिक पढ़ लेंगे। अब बेंचमार्क क्या कर रहा है, इस स्टैंडर्ड को मज़ीद डिफाइन कर रहा है और ग्रेड वाइज डिफाइन कर रहा है। सो अगर आप ऑन द लेफ्ट देखें तो ग्रेड 1 और 2 है, फिर ऐसे ऐसे एट द राइट ग्रेड 11 एंड 12 मौजूद है।
सो ग्रेड 1 और 2 में स्टैंडर्ड 5 को कैसे अचीव किया जा रहा है, उसको पहला बेंचमार्क डिफाइन कर रहा है कि रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग ग्रेड 1 और 2 के बच्चों में डेवलप करने के लिए ये काम करवाएंगे। क्या? सॉर्ट, क्लासिफाई एंड कंपेयर फेमिलियर शेप्स। फिर क्या करेंगे बच्चे? अप्लाई एनालिटिकल रीजनिंग टू एक्सप्लेन फीचर ऑफ अ शेप। सो आहिस्ते आहिस्ते यही टॉपिक ग्रेड 3 एंड 4 में मज़ीद ब्रॉड हो रहा है, और देन ग्रेड 6 में और 8 में और ब्रॉड हो रहा है, एंड देन ग्रेड 11th एंड 12 में इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रहे हैं। किसके? सेम रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग के। सो हमने यहाँ पे ग्रेड 1 और 2 में बेंचमार्क को देखा, सॉर्ट, क्लासिफाई, कंपेयर, फैमिलियर शेप्स। सो रीजनिंग के लिए बच्चे ग्रेड 1 और 2 में इससे रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे ताकि वो रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को समझ सकें। ओके, नाउ वी नीड टू मूव इन एंड सी कि कैसे ये बेंचमार्क स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में चेंज हो जाता है। सो हियर आर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यूनिट 3 है, और हमारा जो टॉपिक है यूनिट 3 में वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। और यहाँ पे हमारे पास 3.1 क्या है यूनिट, वो है जी कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आपने देखा कि कैसे बेंचमार्क को यहाँ पे टॉपिक्स में कन्वर्ट किया गया है और टीचर को बताया गया है कि आपने जब कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ा लेना है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को क्या क्या कैपेबिलिटीज़ उनमें डेवलप हो जानी चाहिए, वो ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या कर सकें। वो क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें ऑब्जेक्ट को और आइडेंटिफाई कर सकें। ये तमाम चीज़ें जो नीचे लिखी हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट शॉर्ट है, कौन सा शॉर्टर है, कौन सा शॉर्टेस्ट है। सो दैट्स हाउ हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट हमें डिफाइन करता है कि कैसे कॉम्पिटेंसीज टॉप पे आती हैं, उन कॉम्पिटेंसीज को स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, और फिर वो स्टैंडर्ड मज़ीद डिफाइंड होते हैं बेंचमार्क्स में, और फिर उनको मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में, जहाँ उनको डिफाइन किया जाता है एग्जैक्ट टॉपिक के अंदर और स्टूडेंट में जो कैपेबिलिटीज़ पैदा करनी है उसकी इंडिकेशन के अंदर। सो स्टूडेंट, आज की डिस्कशन यहीं तक थी। कल से हम अगली डिस्कशन शुरू करेंगे और वी विल गोइंग टू स्टडी द ब्लूम टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में देखेंगे कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कैसे बनाए जाते हैं। सो फार, गुड लक एंड हैप्पी रीडिंग।